हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं पहले आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ लीगल मैटर की, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3 है। ये 83 वर्ड्स पर मिनट की है और 5 मिनट की डिक्टेशन है। 426 वर्ड्स हैं इसमें। इसके बाद मैंने आपको इसकी आउटलाइन दी है। आउटलाइंस आप ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद ही देखना और उनकी प्रैक्टिस भी करना और उनको ठीक तरह से समझ लेना। और लीगल की अगर हम बात करें तो लीगल में अगर आप देखेंगे तो आउटलाइन टिपिकल होती हैं और उनको आपने केयरफुली लिखना होता है कि आउटलाइन को छोटे छोटे वर्ड भी कई बार होते हैं जो अगर हम प्रॉपर नहीं लिखें तो हम उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो आप हो सके तो ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद जब चेक कर लेते हैं उससे मीनिंग भी देखा करिए ताकि आपको वर्ड से एक्वेंटेंस हो जाए और आपके लिए और इजी लगे। और जहाँ भी आपको डाउट हो, क्लियर हो, डिक्शनरी को रेफ़र करिए। इसके बाद यू शुड हैव कमांड। देखिए, या तो लैंग्वेज में हमारी कमांड होनी चाहिए, ग्रामेटिकली हम चीज़ों को गलत ना लिखें और हम वर्ड्स को भी कैच कर पाएँ, समझ पाएँ। और अगर किसी की इंग्लिश मैं कहूँ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो अपनी जितनी आउटलाइंस को स्ट्रॉन्ग करेगा उतना उसको बेनिफिट मिलेगा। तो या तो दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग हो तब काम चल सकता है, या फिर दोनों अगर हैं तो दोनों एवरेज होनी चाहिए। एवरेज से कम जहाँ एक भी हो जाएगी तो वहाँ मुश्किल हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन तब अच्छी होती है अगर आप आउटलाइंस को प्रॉपरली प्लेस करें, समझें और प्लेस करें उनको, तभी आप उनको ट्रांसक्राइब ठीक कर पाते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ डिक्टेशन। थैंक यू। प्लीज़ गेट रेडी फॉर अ डिक्टेशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 33 from the legal material. 5 seconds. Start. Pertaining to the convictions for the offence punishable under section 302 IPC, all accused so convicted have been sentenced to undergo imprisonment for life. Stop. The 4 accused who have been convicted for the offence have been sentenced to undergo imprisonment for 3 years and pay a fine in sum of rupees 1,000 in default of payment of fine, to undergo rigorous imprisonment for 1 month. Stop. The second point urged before the learned trial judge noted in para 33 of the impugned decision is that 9 people had taken part when she was burnt. It was impossible that Kamlesh was set on fire as stated by her. Stop. It was highlighted that the vacant floor space in the room was merely 35 square feet in which 10 persons could barely squeeze. Stop. In this connection, as a limb of the same argument, it was urged that as per Kamlesh, after her husband threw kerosene oil on her. Stop. Having perused the decision of the learned trial judge, we note that after noting the contentions urged that it was not possible for 10 people to fit into the room where Kamlesh suffered burn injuries, and the fact that the burnt pieces of clothes and ash were lifted from 3 different rooms in the house, shows that Kamlesh ran and was not held down as claimed by her. We find that the learned trial judge has failed to deal with the said submission in the manner it was expected to be dealt with. Stop. If this is the manner in which Kamlesh was burnt, it is apparent that there was jostling
inside the room with Kamlesh attempting to ward off the assault and she being pinned down, and even after she was set on fire, she was continued to be caught hold of. Stop. Thus, the learned trial judge has totally gone off at a tangent when the argument urged before the learned trial judge has been negated by holding that 9 persons had entered the room not to stand there comfortably but to commit the offense. Stop. The scene in the house tells its own story of truth. Stop. The accused, Rani and Nirmala, are the sisters of her husband. Stop. They were married when the crime took place. Stop. Their husbands are Rampal and Ashok Kumar. Stop. We note that there is no evidence led by Rampal or Ashok Kumar as to where they were residing. Stop. But being the sons-in-law of the family, it is expected that they would not be residing in the same house in which the deceased was residing. Stop. अब आउटलाइन देख लिए. सबसे पहले है परटेनिंग. ये मैंने पहले भी पिछली भी वीडियो में दी थी. परटेन और उसके साथ इंग लगेगा. नेक्स्ट वर्ड है कन्विक्शंस. तो कन्विक्शंस को आपने थ्रू द लाइन प्लेस करना है और ऊपर कौन जरूर लगाना है, और कन्विक्शंस है तो एस क्लियरली दिखाना है. नहीं तो अगर आपने एस नहीं दिखाया तो कन्विक्शन लिख देंगे और आपका सिंगुलर प्लूरल की हाफ मिस्टेक हो जाएगी. हाँ, वहाँ भी हो सकता है फुल मिस्टेक हो. तो फुल मिस्टेक आपने सब कुछ लिखा, मेहनत भी की, टाइप भी किया. आप सोचेंगे मैंने ठीक किया, लेकिन क्योंकि कन्विक्शंस था आपने कन्विक्शन लिख दिया, या अगर कन्विक्शन था तो आपने कन्विक्शंस कर दिया, तो एक मिस्टेक आपकी हो गई अनजाने में. तो जब हम कर रहे हैं चीज़ों को जितना एक्यूरेटली करेंगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा और उतना हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी. नेक्स्ट देखिए पनिशेबल. सिंपल है, पनिश लिख के एबल जोड़ देना है. उसके बाद अंडर सेक्शन है, अंडर सेक्शन ऑन द लाइन लिखिएगा. नेक्स्ट अंडरगो है और गो के नीचे ओ ज़रूर लगाइएगा ताकि आप इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज कर सकें और उसको ट्रांसक्राइब कर सकें. इम्प्रिजनमेंट में आप देखिए इम्प्रीजन लिख के मेंट उल्टा नहीं होता, उसकी जगह हम एन हाफ लगाते हैं, तो इसको इम्प्रिजनमेंट ही पढ़ेंगे, हालांकि इसमें एम है नहीं और होता भी नहीं है. नेक्स्ट है डिफॉल्ट. डिफॉल्ट में डी एफ और एल अपवर्ड. ठीक है, डिफॉल्ट आधा एल डालेंगे डिफॉल्ट के लिए. नेक्स्ट वर्ड है रिगरस. रिगरस इम्प्रिजनमेंट आता है. रिगरस होता है टफ पनिशमेंट जो देता है कोर्ट, उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं. हो सके तो आप आईपीसी में पढ़ लीजिए, कुछ टर्मिनोलॉजी वहाँ भी मिलेंगे आईपीसी में आपको. तो रिगरस के RIGOROUS होता है रिगरस. स्पेलिंग भी आने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप इसको रिकॉर्ड्स पढ़ लो या रिगार्ड्स पढ़ लो. जब इम्प्रिजनमेंट के साथ आएगा तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही आएगा. नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यून्ड. आपने सुना होगा, मैंने पहले भी बताया है, IMPUGNED. इम्प्यून्ड में जी जो है साइलेंट होता है. इम्प्यून्ड ही बोला जाएगा आपको. इम्प्यून्ड मीन्स जिस भी ऑर्डर को, जिस भी डिसीजन को, जिस भी जजमेंट को हम चैलेंज कर रहे हैं उसको इम्प्यून्ड ऑर्डर, इम्प्यून्ड जजमेंट, इम्प्यून्ड डिसीजन, ऐसे वर्ड आएंगे आपको. उसके बाद है बर्न्ट. बी पूरा आएगा, RN हाफ आएगा. नेक्स्ट है वेकेंट. वेकेंट में
वी के और एन हाफ, वेकेंट। बेयरली सिंपल है, बेयरली में ऑन द लाइन लिखिए, हो सके तो ए भी लगा दीजिए बी के साथ, इसको पुअरली मत पढ़ लीजिएगा। वही मैं कहता हूँ कि अगर आप लिखेंगे बेयरली ऑन द लाइन और ए भी डाल देंगे बी के साथ तो और परफेक्ट हो जाएगी। इसी को अगर आप पुअरली तब बनेगा जब इसको हम थ्रू द लाइन लिख देंगे। तो एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वीज। स्क्वीज आप देख रहे हैं SQSKW और S बाद में, और E का डॉट भी मैंने लगा दिया है ताकि आपको और क्लियर हो जाए। स्क्वीज SQUEEZE, स्क्वीज मीन्स किसी चीज़ को दबा देना या पिचका देना, स्क्वीज, स्क्वीजिंग। नेक्स्ट है लिम्ब। लिम्ब में देखिए L डाउनवर्ड होगा और MB होगा। उसके बाद है पेरूस्ड। पेरूस्ड में PERUSED होता है। पेरूजल, किसी को किसी चीज़ का जब हम एग्जामिन करते हैं उसको पेरूजल बोला जाता है, उसी से पेरूस बनता है, पेरूस्ड बनता है पास्ट में, PERUSED। एक परस्यू होता है, जब परस्यू होगा तो P आएगा, फिर R पूरा आएगा और S पूरा जुड़ेगा इसके साथ डाउनवर्ड S करके, फुल S लगेगा। पेरूस वो परस्यू हो जाता है। परस्यू में जब लिखेंगे आप, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, परस्यू में जब लिखेंगे PRS डाउनवर्ड और U भी उसके साथ अटैच कर देंगे और उसके स्पेलिंग भी PURSUE होगा। परस्यू किसी चीज़ को फॉलो अप करना। पेरूस और परस्यू दोनों वर्ड अलग अलग हैं। उसके बाद मैंने वर्ड लिखा है कमलेश और मैंने नीचे डबल टिक भी लगाए हैं, और जिससे आइडेंटिफाई हो आपको कि ये एक प्रॉपर नाउन है या कुछ डिफरेंट वर्ड है। तो कमलेश में KMLSH कर दिया मैंने। नेक्स्ट आउटलाइन मैंने लिखी है पीसीज की। पीसीज में अगर आप डबल S नहीं बनाएंगे तो आप देखिए पीस और पीसीज में डिफरेंस जरूर होना चाहिए, और नहीं करेंगे तो हम वर्ड लिख के भी, ट्रांसक्राइब करके भी एक मिस्टेक करके आएंगे और हम सोचेंगे हमने ठीक किया है। तो पीसीज और पीस मैंने इसलिए दिखाए हैं आपको, आप समझ सकें कि हमें कैसे लिखनी है आउटलाइंस। नेक्स्ट है ऐश। ऐश जो है अबव द लाइन होगा और मैंने उसको अबव द लाइन लिखा है सच को। उसके बाद है लिफ्ट, लिफ्टेड। अब देखिए लिफ्ट में L थ्रू द लाइन, F हाफ। अगर लिफ्टेड होगा तो L F पूरा आएगा और T आधा आएगा। तो इस क्लियरली यू कैन डिमार्केट के लिफ्ट लिखा है, लिफ्टेड लिखा है, और ट्रांसक्राइब करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप आउटलाइन करेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है अपेरेंट। AP मैंने अबव द लाइन लिखा है, अपेरेंट है तो PRNT। इसी में अगर पेरेंट आ जाएगा तो पेरेंट आप ऑन द लाइन लिखिए, वो पेरेंट हो जाएगा। अबव द लाइन होगा तो अपेरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जॉसलिंग। जॉसल बोलते हैं कि एक दूसरे को कंधा मार के चलना, या रश में जैसे जॉसलिंग होती है, एक दूसरे से टकराना कह सकते हैं। जॉसलिंग है JSL इंग, जॉसलिंग। नेक्स्ट है वार्ड ऑफ। अब वार्ड ऑफ में मैंने पहली आउटलाइन में मैंने ज्वाइन कर दिया, वार्ड ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट में मैंने वार्ड ऑफ आपको अलग दिखाया, जैसे आप चाहिए वार्ड ऑफ। उसके बाद है पिंड डाउन। देखिए छोटे छोटे वर्ड हैं, पिंड डाउन। अब पिंड को अगर आपने ढंग से नहीं लिखा तो ये आपको एक मिस्टेक कर देगा। पिंड डाउन में आधा P होगा, पिंड और E भी लगा दीजिए और क्लियर है। पिंड डाउन तो क्लियर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं होता, पिंड डाउन। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है कॉट। देखिए कॉट मैंने कैसे लिखा है, आप थोड़ा सा इन चीज़ों को समझिए। अगर इसको आप कॉट में K और T लिख देंगे तो आप इसको गॉट पढ़ लेंगे। कॉट में K हाफ होता है और नीचे आ लगा दिया आपने, कॉट है। स्पेलिंग आप जानते हैं, CAUGHT। नेक्स्ट वर्ड है टेंजेंट। टेंजेंट देखिए अबव द लाइन होगा, 10 और J आधा होगा, टेंजेंट। बाद में नेक्स्ट वर्ड है निगेटेड। निगेटेड किस चीज़ को मना कर देना, निगेटेड। उसके बाद है कंफर्टेबली। कंफर्टेबली, अगर कंफर्टेबल होगा तो आपको डॉट नहीं लगाना, कंफर्टेबली होगा तो आपको डॉट लगाना है ताकि आप ट्रांसक्राइब करेक्ट कर सकें। नेक्स्ट वर्ड है कमिट। इसी में अगर आप डॉट
कमेटी का लगा देंगे तो हो सकता है आप कमेटी पढ़ लें, हालांकि सेंस के हिसाब से कमिट होता ही है जब टेक्स्ट आप देखेंगे तो, बट स्टिल आप चाहें तो डॉट पहले लगा सकते हैं टी से। उसके बाद वर्ड आ रहा है रानी, नाम है ये, तो मैंने रानी, आप देखिए कैसे लिखा है, निर्मला, निर्मला भी मैंने दोनों के नीचे डबल टिक लगाए हैं। ये जो भी हम लिखते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए करते हैं आउटलाइंस को अच्छा, ताकि हम ट्रांसक्राइब अच्छा कर सकें। उसके बाद वर्ड आ रहा है सिस्टर्स, तो आपने सिस्टर और एस भी बाहर क्लियरली दिखाना है, सिस्टर्स। नेक्स्ट वर्ड है, नाम है ये रामपाल, नाम देखो कैसे, अगर डबल टिक है तो पता लग रहा है हमें ये नाम इतने हैं इसमें, रामपाल, RMPL, रामपाल। नेक्स्ट वर्ड है अशोक कुमार, अशोक कुमार है क्योंकि इसलिए मैंने अबव द लाइन लिखा है, शो दिखा दिया है, के दिखा दिया है, MR दिखा दिया है, और कुमार मैंने वैसे अलग से भी लिख दिया अगर आप लिखना चाहें तो, बट अशोक कुमार इसको आप पढ़ पाएंगे अगर आप प्रॉपरली ऐसे लिखेंगे तो ऐसे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी आउटलाइन है, अगर आप बनाना इसी को प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि आप छोटे छोटे नाम लिखना शुरू कर देंगे। और शॉर्टहैंड अगर अच्छी होगी तो आप आउटलाइन भी लिख लेंगे। आप इंग्लिश में लिखना चाहें आपकी अपनी चॉइस है, हिंदी में लिखना चाहें आपकी चॉइस है, जैसे आपका हाथ का फ्लो हो, जैसे आपकी समझ हो, जिस चीज़ में आपकी कमांड हो उसी को यूज़ कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करिए जो भी आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड मैंने दिया है डिसीज्ड, देखिए DS और S और SD, डिसीज्ड, और इसमें मैंने स्पेलिंग भी नोइंगली लिखे हैं कि DECEASED, डिसीज्ड मीन्स जिसकी डेथ हो चुकी है। तो डिसीज के मैंने पहले भी बताया था, जो बीमारी होती है DISEASE होता है, और DECEASE डिसीज्ड, जिसकी डेथ हो जाती है, डिसीज्ड। तो ये सब हैं आप आउटलाइन आपके लिए, आप इनको कितना अच्छा समझ सकते हैं और क्या आपको कैसी लग रही हैं, थोड़ा इस पर भी कमेंट्स करिए। कमेंट्स करने में अच्छे हैं तो वैसे भी नहीं डरना चाहिए, जितना आप खुल के कर सकें। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नॉर्मल वीडियो एंटरटेनमेंट की शायद आप सब्सक्राइब भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे, लेकिन मैंने ये देखा है कि आप लोग कमेंट्स भी बहुत कम लोग करते हैं। आई डोंट नो, खैर चॉइस आपकी है, मैं कंपेल नहीं करता किसी को, ना ही मैं किसी को कहता हूँ बार बार। जिसको अच्छा लगे वो ज़रूर आगे शेयर करे, सब्सक्राइब करे। दैट्स ऑल, थैंक यू।